and Justice is a very famous play written by John Galsworthy. It is a problem play. The play deals with the life of a young man named William Falder. He is a junior clerk in the office of James and Walter Howe. He forges a check in order to help Ruth Honeywell, a beautiful but miserable young lady. This lady is ill-treated by her husband. She is distressed in miserable condition. Falder wants to run away with that woman to another country. For paying the fare, he needs extra money, so he forces out the check and writes 90 in place of £9 by adding ty to the word and 0 to the figure of 9. He does this with mind that he would return the money from abroad, but before his departure, this forgery is discovered. He is tried in a court of law. His lawyer tried to defend him by admitting the crime, but by saying that the crime was done in a fit of excitement, emotion. Sentenced to 3 years imprisonment, including the solitary confinement, the jail life makes his life hell. All the time he is miserable and mentally disturbed in the jail. After his release from the jail, his relations and other acquaintances do not treat him well. He is neglected, rebuffed, insulted and humiliated. He has to leave a job because his fellow workers come to know that he is an ex-convict. He tries to get a job in old firm of the house, but James Howe is reluctant to accept him. Later on, James agrees to give a job, but he should not let him know anything about his private life. He also asks him to abandon Ruth Honeywell, but Falder loves her deeply. He declines to give her up. Meanwhile, the police detective comes there. He arrests him again on the charge of not reporting himself to the police station as a convict, and on the charge of forging a reference. Falder, who has had a bitter experience of imprisonment, feels that he cannot undergo another term of imprisonment. So he jumps down and breaks his neck and dies. Very pathetic story. Let's see some question answers, some objective type question answer based on this drama. We have some objective type question based on this play. By whom justice was written? As you know very well, हम पढ़ ही रहे थे कि जस्टिस किसने लिखी है. Justice is written by John Galsworthy. Answer would be John Galsworthy. By whom justice was written? Justice was written by John Galsworthy. This would be answer. And moving to the next question, Galsworthy was born on 1867. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्डर क्या था? अभी हमने देखा था फॉल्डर क्या था. जेम्स हाउ वॉल्टर हाउ की फर्म में एक जूनियर क्लर्क था. अगला क्वेश्चन है, हु वाज स्वीडल इन द प्ले जस्टिस? स्वीडल एक 16 ईयर ओल्ड लड़का है, ऑफिस बॉय है जो वहाँ काम करता है वॉल्टर हाउ के फर्म में. तो ये क्या है? स्वीडल क्या है? एक ऑफिस बॉय है. अगला क्वेश्चन है, हु कंसोल फादर इन द प्रिजन अगेन एंड अगेन? जैसा अभी हमने समरी में देखा कि कॉक्सन जो है ये फादर को बार बार कंसोल करता है, क्योंकि कॉक्सन क्या है, इसका फादर का वेलविशर के तौर पे है. और जब ये केस फाइल करता है वहाँ कोर्ट में, तो जो इसका लॉयर होता है फादर का, उसको भी कॉक्सन सपोर्ट करता है. और कॉक्सन हमेशा ही फादर को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कभी कभार जज्बाती होकर इंसान कोई गलती कर देता है तो उसे बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं समझा जाना चाहिए, ऐसा कॉक्सन का मानना होता है. और ऐसा ही मानना लगभग फादर के लॉयर का भी होता है.
फार्डर वर इम्प्रिजन फॉर, फार्डर को इस फोर्जरी के केस में कितनी साल की सज़ा होती है? फार्डर को इस केस में 3 साल की सज़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु पोचेस फार्डर एट द एंड ऑफ द प्ले? विजिटर। आंसर वुड बी बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंसल्टेड फार्डर एट द सिस्टर्स हाउस? सिस्टर के घर में जब ये रहता है फार्डर या शरण लेता है तो इसका कौन बार बार इसको इंसर्ट करता है? इसके ब्रदर इन लॉ इसकी इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फार्डर अल्टर द चेक? बिकॉज, फार्डर ने अल्टर क्यों की उस चेक में? क्यों? वो 9 को उसने 90 बनाया, 0 ऐड किया और 9 में TY ऐड किया। क्यों किया ऐसा उसने? वांटेड टू लीड अ हैप्पी लाइफ? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। वांटेड टू रन अवे, भाग जाना चाहता था? नहीं। वांटेड टू इलोप विद रूथ या वांटेड टू बिकम रिच? नहीं, रिच बनने के तो उसको कोई इरादा नहीं था। ही वांटेड टू इलोप विद रूथ, एक हेल्पलेस लेडी थी जिसकी वो हेल्प करना चाहता था, एंड ही इज़ इन लव विद रूथ हनीवेल। तो ये क्या होगा? सी आंसर इज राइट, वांटेड टू इलोप विद रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रूथ्स हस्बैंड? रूथ्स के हस्बैंड क्या थे? फिशरमैन? नहीं, फिशरमैन का तो कोई जिक्र नहीं है पूरे प्ले में। पियून भी नहीं था। ड्रंकर्ड, यस, ये क्या था? पियक्कड़ व्यक्ति था, पूरा शराब पीने वाला, जो कि रूथ के साथ अक्सर वायलेंस, फिजिकल वायलेंस करके उसको परेशान कर मारपीट करता था। इसी वजह से रूथ मजबूर होकर एक दिन वॉल्टर हाउ के ऑफिस आ जाती है, किससे मिलने? फार्डर से मिलने, और उसे अपनी आप बीती सुनाती है। एक दिन हम ये समरी हिंदी में भी जानेंगे, फिर देखेंगे डिटेल में स्टोरी। जेम्स कमेंट्स दैट पीपल लाइक फार्डर हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट डज ब्लाइंड स्पॉट स्टैंड्स फॉर? जेम्स ये कमेंट करता है कि फॉर्डर जैसे लोग जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट जो है ये यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वीक कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर या नन ऑफ दीज? वीक कैरेक्टर भी नहीं, स्ट्रॉन्ग। यस यस, जेम्स कमेंट्स दैट पीपल लाइक फॉर्डर हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट डज ब्लाइंड स्पॉट स्टैंड्स फॉर? ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है अ कैरेक्टर जिसकी पर्सनैलिटी क्या होती है? थोड़ा वीक दिखाई देता है अपने आप, क्योंकि ऐसा लगता है फॉर्डर बेचारा मजबूरी हालात का शिकार है, इसलिए फॉर्डर शुरू से ही वीक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इस पे जेम्स कमेंट करता है कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब है? तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब यहाँ पे वीक कैरेक्टर से है। इन हाउ मैनी एक्ट्स हैज़ द प्ले बीन कवर्ड? ये प्ले जो है पूरा कितने एक्ट में कवर्ड किया गया है? इसमें पूरे प्ले में 4 एक्ट्स हैं, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्यूडोनीम दैट गाल्सवर्दी टुक टू पब्लिश हिज अर्लियर वर्क्स? गाल्सवर्दी एक स्यूडोनीम से लिखते थे, यानी एक पैन नेम था जब वो अपने वर्क्स लिखा करते थे, अर्लियर वर्क्स। तो उन्हें जॉन सिम्किंस के नाम से जाना जाता था, जॉन सेबेस्टियन या जॉन सिंजॉन या फिर जॉन सैम्पलिन के नाम से जाना जाता था। तो ये जब लिखते थे ये पैन नेम से लिखते थे और इनका नाम था जॉन सिंजॉन। शी वन इज़ द करेक्ट आंसर। When did the play Justice published? Justice was published in 1910. And in play Justice, it is a matter of life and death. Who says this to whom? इस प्ले में कॉक्सन के पास रूथ हनीवेल जाती है और उससे कहती है, कॉक्सन क्या है, उनके फर्म में एक सीनियर वर्कर है, वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ के फर्म में कॉक्सन काम करता है, हेड क्लर्क है वहाँ। तो हेड पर्सन होने के नाते वो उससे ही पूछती है कि क्या वो फार्डर से मिल सकती है। जब वो मना करता है तो फिर वो बताती है, अपनी मजबूरी बताती है और कहती है इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का सवाल है, प्लीज़ आप मुझे उससे मिलने दें। और उससे प्लीज करती है, रिक्वेस्ट करती है उससे। तब जाकर फिर वो फार्डर से बोलता है कि ऐसा अलाउ तो नहीं है कि ऑफिस में किसी लेडी को मिलने दिया जाए, लेकिन वो लेडी इतना ज़्यादा बेसीजली बड़ा रिक्वेस्ट कर रही है, वो बहुत प्लीडिंग कर रही है कि मुझे मिलने ही दिया जाए। बेचारी मजबूर, बेचारी औरत लग रही है, उसके साथ बच्चे भी हैं, तो इसलिए वो डिसीज़न लेता है कि फार्डर को थोड़ी देर मिलने दिया जाए, लेकिन उसे अलर्ट करता है कि ऐसा फिर कभी दोबारा बार बार मिलने नहीं दिया जाएगा। तो इस प्ले में जो जस्टिस में है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये कौन किससे कहता है? तो ये रूथ हनीवेल कहती है कॉक्सन से, जो कॉक्सन एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। इसको कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिखाई दे रही है पूरे प्ले में, या बहुत ज़्यादा अच्छा रोल जो लग रहा है पूरा जस्टिस प्ले में, तो वो आपको फार्डर के बाद कॉक्सन का ही लगेगा। कॉक्सन फार्डर का वेल विशर भी है, पूरे प्ले में इसकी डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो जस्टिस पर बेस्ड थे MCQ। आगे भी हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।